Oh, sorry, I'm not able to record the question, so I'll repeat it again. This is the question, and we are going to prepare the books of prime entries for this question. So there are 6 types of books of prime entries: sale journal, purchase journal, return inward journal, return outward journal, cash book, and general journal. First, from these transactions, I'm going to prepare the purchase journal. There are only 2 people from whom the goods are purchased on credit. A say 2000 and B say 1000. So I will write the amount in the purchase journal. A, date, amount 2000, B 1000, total credit purchase are 3000. Then I will prepare sale journal, and I have sold goods to C 800 on credit and to D 700. I will write this in the sale journal with their names. This is how we prepare the sale journal. I will write the amount with the name of those people to whom the goods are sold on credit, their amount and their total 1500. Then I prepared the sales return journal. The goods have been returned back to us from C with an amount of 200. There is no other sales return. I am going to write the sales return with the name C. I will date, amount, and I will go for the total. There can be some other people. D can also return us. Now I'm going to prepare the purchase return journal. So I'll write over here purchase return journal. रिटर्न आउटवर्ड डे बुक भी कह सकते हैं इसको आप. इस तरह से रिटर्न को भी आप रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड डे बुक भी कह सकते हैं. एक ही बात है. इसका सबसे पहले जी डेट आ जाएगी और इसकी जो है वो अमाउंट आ जाएगी. तो मैं लिख लेता हूँ इसमें. सिंपल सा फॉर्मेट है इसके. इधर आप डेट लिख लेंगे और यहाँ पे मैं लिख लूंगा उसकी अमाउंट. तो डेट तो मुझे मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि चीजें जो वापस आई हैं वो हमें वापस जो हमने की हैं वो हमने वापस की हैं किसको. गुड्स परचेज फ्रॉम ए रिटर्न टू हिम 500. ए से हमने चीजें खरीदी 2000 की और हमने उसको वापस कर दी है 500 उसमें से. दैट इज बेसिकली योर परचेज रिटर्न. यहाँ पे लिखूंगा ए, नाम आ जाएगा ए का. आई विल राइट द अमाउंट ऑफ द रिटर्न विच इज 500 एंड दैट्स इट. आई विल गो फॉर द टोटल. So these journals are very easy to prepare. You just need to write the date, the amount, and the total. The names from whom the goods are purchased, sold, and the goods are returned back to us, or goods are returned to that particular person. This is how we have purchased sale journal, purchase day book, या journal, sales return journal, या purchase return journal. Next, I am going to prepare the cash book. Cash book is both a book of prime entry and a ledger. It is prepared in the T account form, but it has 2 sides because it has 2 accounts, cash account and bank account, but in the same format. So I'll prepare the cash account and bank account, but format is going to be the same. The format will remain the same. And this is the cash account and the bank account. जी आपने कोई मसला है तो बताएं. नहीं सर. जी कैश का कॉलम बनेगा जी मेरा, बैंक का. इसी तरह यहाँ पे मैं बनाऊंगा कैश का. Let's see that how I'm going to prepare cash book from the accounts. First, I used to write brought down, but as in this question there is no brought down balance coming from the previous month, I have still written brought down, but I don't need to write brought down because the balance is not given in the question. So let's start solving the question. All the transactions which involves cash or bank will come in the cash book. तो पहली ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक आ रहा है वो है कैश सेल्स 1000. The entry for cash sales is cash debit and sales credit. So how I'm going to post it? Cash debit हो रहा है 1000 से, किसकी वजह से? Sales की वजह से. I will write over here sales. Again, I will check out how any transactions cash paid into bank. Cash paid into bank is basically contra entry, and contra entry is an entry which affects both sides of the cash book. It will come on the debit side of bank with 500 with reference to cash, and on the credit side of cash because cash paid into bank, so cash is going to be credited by 500 because of bank. This is a contra entry. It will come on the debit side of bank account and credit side of cash account. Let's talk about other entries regarding cash and bank. Rent paid in cash and salaries paid by check 100.
Rent paid in cash, cash is going to be credited by 100 because of rent. And because salary is paid by check, so 100 again is going to be credited in the bank column with reference to salaries. Let's see if and there is any other entry regarding cash and bank. Machinery purchase on credit, no. Cash received from C for the remaining amount. अब देखें C से हमने कितने पैसे लेने थे, हमने C से 800 वसूल करना था, but we have returned, C has returned the goods back to us of 200, so the remaining amount is 600 और वो हमें C ने पे कर दी through cash. तो कैश डेबिट हो जाएगा एंड C क्रेडिट हो जाएगा. तो कैश is going to be debited by 600 and the name will come of C because cash is debit and C is going to be credited. Any other transaction which relates with the bank and cash? Yes. Check paid to B 200. B को हमने पे करना था 1000. Out of that, we are paying B 200 of the amount. So B is going to be debited and bank is going to be credited. Bank is going to be credited by 200 because of B. I will write B over here. So this is how I prepared my cash book. Now I'm going to go for the totals of the cash book and I'm going to find the balancing figure or the balance carried down, whatever is available. If I will go for the total of the debit side of cash book, the cash account, it is 1600. So I will write 1600, same on the credit side. And if I will go for the carried down balance, so the carried down balance I will get is, yes, is 1000. 1000 is my carried down. Now if I will go for the total of the bank account, so the total is 500, which I will write on both the sides. And carried down balance, if I will get of the bank, so 500 minus 300, 200 is the carried down of bank, which will return, which is going to be returned on the next, in the next year, with balance brought down 1000 and 200 आपको लिखना पड़ेगा. Now I am going to prepare the journal. Any problem till here? क्वेश्चन था Sorry, जी. सर, अगर हमारा कैरेट डाउन जो है, अगर बैंक का फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड पे आ रहा हो और बैंक का हमारा डेबिट साइड पे आ रहा हो, तो हम दोनों साइडों पे ही लिखेंगे ना दोनों कैरेट साइडों डाउन. पे ही लिखेंगे. बैंक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट हो सकता है. बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, वो ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता. बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैश का बैलेंस जो है वो कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता. उसको आपको क्रेडिट साइड पर ही ओवरड्राफ्ट होगा तो फिर बैंक क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा आपको. आगे हमने एंट्री करनी है जनरल में. तो ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच डज नॉट कम इन द परचेज सेल जर्नल और व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व कैश और बैंक, दे विल मूव टू जनरल. इसमें एक ही एंट्री है जो जनरल में जाएगी और वह मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफ, दैट विल मूव टुवर्ड्स द जनरल. और जनरल इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज अदर जर्नल्स आर प्रिपेयर्ड, मींस कि उसकी सिंपल एंट्री हम पास करते हैं. Machinery is going to be debited and F is going to be credited with the amount. Amount is, which I have made you write, is 2000, hopefully. हम चेक भी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में. The machinery purchase on credit from F 2000. This is how I have prepared the books of prime entries. Now I am going to prepare the ledgers. It is also, we have prepared journals only. Now I am going to prepare ledgers, and there are three types of ledgers: sales ledger, purchase ledger, and general ledger. So first of all, I am going to prepare the sales ledger, make you understand how we used to prepare the sales ledger. In sales ledger, we prepare T account of each individual customer. In sales ledger, we prepare T account of each individual customer. जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनके टी अकाउंट जो है ना वो आपने बनाने हैं किसमें, सेल लेजर में. तो अगर आप गौर करें तो हमने ऑलरेडी कस्टमर उस बुक्स में बनाया हुआ है. हमारे दो ही कस्टमर्स हैं, कौन है, सी और डी. इनके अकाउंट्स आप बनाएंगे सेल लेजर में. हम इनके अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बनाते हैं जी सी का अकाउंट और फिर हमारा बन जाएगा जी किसका, डी का अकाउंट. बन गया खैर, इट्स ओके. तो सी अकाउंट हम यहाँ बनाते हैं जी.
सी जो है वो हमारा डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, कितने से, 800 से. राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ सी 800, but the name will come of the opposite side which is obviously sales. फिर देखें सी से हमें कुछ चीजें हमने उनको वापस की उसको, yes we have returned the goods back to C has returned the goods back to us with an amount of 200. उसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू सी, रिटर्न इनवर्ट टू सी. सी क्रेडिट हो रहा है 200 से, किसकी वजह से, रिटर्न इनवर्ट की वजह से, या आप कह सकते हो सेल्स रिटर्न की वजह से. वन एंड द सेम थिंग विद एन अमाउंट ऑफ 200. फिर क्वेश्चन में एक और एंट्री है सी से रिलेटेड, कैश रिसीव फ्रॉम सी फॉर द रिमेनिंग अमाउंट. तो सी से हमें पैसे भी मिल गए हैं, वो हमने कैश बुक के अंदर भी एंटर की हुई थी, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं कि रिसीव हुआ है कैश सी से. उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट और सी क्रेडिट. तो सी जो है वो क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, कितने से, द रिमेनिंग अमाउंट विच इज 600. तो इसका टोटल तो आपस में बराबर आएगा. अब हम बनाते हैं किसका अकाउंट, डी का अकाउंट. डी का अकाउंट जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो मैं डी से, मैंने चीजें डी को बेची थी, डी डेबिट था और सेल्स क्रेडिट थी. तो डी डेबिट हो रहा है कितने से, लेट्स चेक इट आउट कि डी को हमने कितने की चीजें बेची हैं. डी को 700 की चीजें बेची हैं हमने. डी डेबिट हो जाएगा आपका 700 से बिकॉज ऑफ सेल्स. सामने इसके नाम आ जाएगा सेल्स का, सेल्स का नाम आ जाएगा. देखते हैं डी को हमने कुछ चीजें वापस की हैं या कोई और ट्रांजैक्शन जो डी से रिलेटेड हो. मैंने ख्याल है और कोई ट्रांजैक्शन डी से रिलेटेड नहीं है, ना तो उसने हमें पेमेंट की है ना ही कुछ चीजें वापस आई हैं. तो बस ये हमने अकाउंट डी का और सी का बना दिया. अब हम बनाएंगे अपने परचेज लेजर्स. जो लास्ट एंट्री डेब्ट्स बिकम्स बैड 200 ड्यू फ्रॉम डी. ओके, हाँ जी. तो डेट्स बिकम बैड, ये मैंने एंट्री पास की ही नहीं, तो मुझे पहले उसकी एंट्री पास करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये एंट्री जनरल में जाएगी. बिकॉज ना तो इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है और ना ही इसके अंदर आपके बाकी कोई केसेस या गुड्स इन्वॉल्व हो रही है. तो ये बैड डेट्स एक्सपेंस है, डेबिट होता है हमारा. डी हमारा ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहा है, सो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट. तो डी से हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए कितने, 200 के. तो 200 की बैड डेट्स की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, जो कि मैं पास करूंगा बैड डेट्स टू डी, और उसके टी अकाउंट में मुझे लिखनी पड़ेगी. डी जो है वो क्रेडिट हो रहा है 200 से बिकॉज ऑफ बैड डेट्स. थैंक यू वेरी मच. बैड डेट्स आ जाएगा 200 से. नेक्स्ट हम बनाएंगे जी परचेज लेजर, और उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें हम बनाएंगे टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल सप्लायर. यानी जिन लोगों से चीजें उधार पे खरीदी हैं उनका अलग अलग टी अकाउंट हम बनाएंगे परचेज लेजर. तो यानी किसका बनेगा, ऑब्वियसली इसमें ए का अकाउंट बनेगा. अकाउंट हम बनाएंगे ए का, और हम बी का अकाउंट बनाएंगे. यही दोनों हमारे जो है वो ट्रेड पेबल्स हैं जिनका हमें अकाउंट जो है वो बिल करना है. ए से हमने चीजें खरीदी हैं पहले कितने की, सवाल में अगर हम देखें तो नजर आ जाएगा हमें. चीजें खरीदी हैं ए से 2000 की और बी से हमने खरीदी हैं 1000 की. तो एंट्री होगी परचेजेस डेबिट एंड ए क्रेडिट. ए जो है वो क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ परचेजेस से 2000 से. देखते हैं कि हमने कुछ चीजें ए को वापस तो नहीं की. जी, गुड्स रिटर्न बैक, गुड्स परचेज फ्रॉम ए रिटर्न टू हिम 500, हमने उसको चीजें वापस जो है वो की हैं. तो वापस की है हमने. ये रिटर्न आउटवर्ड इधर आएगा, उसकी एंट्री होगी ए टू रिटर्न आउटवर्ड या ए टू परचेज रिटर्न. तो रिटर्न आउटवर्ड इस साइड पे लिखेंगे हम. कितने की वापस की हमने, 500 की. दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ ए व्हिच इज कंप्लीट नाउ. बी को हमने चीजें खरीदी हैं, बी से हमने कितने की, 1000 की. उसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट और बी क्रेडिट. तो बी क्रेडिट हो रहा है 1000 से बिकॉज ऑफ परचेजेस. अब बी से चीजें वापस तो आपको नहीं आई, लेकिन बी ने हमें पेमेंट की है. अगर आप क्वेश्चन में देखें, हमने चेक पेड हमने किया है बी को 200 का. तो उसकी एंट्री होगी बी डेबिट और बैंक क्रेडिट, जो कि हमने कैश बुक के अंदर भी लिखा हुआ है 200 का. तो बी डेबिट और बैंक क्रेडिट. बी डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, ऐसे 200 से, वो हमने कर दिया. इस तरह से हमने सेल लेजर और परचेज लेजर बना लिए. लेकिन परचेज लेजर में भी एक अकाउंट और बनना है, किसका,
वो बनना है एफ का। तो एफ का अकाउंट हम परचेज लेजर में बना सकते हैं क्योंकि हमने उससे बेसिकली मशीनरी जो है वो परचेज की थी। एफ का अकाउंट हम बनाते हैं परचेज लेजर में। मशीनरी परचेज फ्रॉम एम, उसकी एंट्री थी मशीनरी डेबिट और एफ क्रेडिट। एफ क्रेडिट हो रहा है मशीनरी की वजह से, कितने से, 2000 से। ये हमने आपका अकाउंट भी बना दिया। अब हमने क्या बनाना है जी, जनरल लेजर। जनरल लेजर में we used to prepare all other T accounts except cash and bank, क्योंकि कैश बुक इज बोथ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड ए लेजर। कैश का टी अकाउंट हम बना, बैंक का टी अकाउंट हम बना चुके हैं, पर्सनल अकाउंट्स भी हम बना चुके हैं, सेल्स के भी और परचेजेस के भी। बाकी पर्सनल अकाउंट और कैश और बैंक के अलावा बाकी टी अकाउंट्स हमारे जनरल लेजर में बनेंगे। इसमें सबसे पहले आप सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, परचेजेस का अकाउंट जो है वो बनेगा आपका, इनवर्ट अकाउंट बनेगा जी, या परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट आप कह लें। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बनेगा, देन वी कैन प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। फिर उसके बाद बैड डेट्स का अकाउंट भी आपका बनेगा, वो भी जो है आपके अकाउंट्स में आने हैं। ठीक है जी। उसके अलावा रेंट का अकाउंट बनेगा, सैलरीज का अकाउंट बनेगा, बाकी सारे अकाउंट्स बनने हैं जो कि आपके बनने वाले हैं। तो मैं देखता हूँ कि और कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं। यहाँ से देखता हूँ सैलरीज का, रेंट का, बाकी तो मेरा ख्याल है हम तकरीबन बना चुके हैं। मशीनरी का मैंने बना दिया, बेडर्स का बना दिया, तो बाकी हम तकरीबन बना चुके हैं। सैलरीज और रेंट का भी हम कोई जगह बनाकर बाद में आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे रेंट का अकाउंट भी अब इसको जरा हम लिख लेते हैं। सेल्स अकाउंट आपका आ जाएगा इधर, परचेजेस अकाउंट बन जाएगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बन जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, बैडर्स का अकाउंट बनेगा, सैलरीज का अकाउंट बनेगा और रेंट का अकाउंट। इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स बेटा दो किस्म की हैं, एक कैश सेल्स है जो आपने लिखी हुई है यहाँ पे देखें, कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो कैश टू सेल्स एंट्रीज की थी, और कैश सेल्स जो है वो आपकी हो रही है कितने की, 1000 की। ठीक है जी। इसमें कैश डेबिट हो रहा था, सेल्स क्रेडिट हो रही है। तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश। सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ऑब्वियसली लिखूंगा 1000, किसकी वजह से, कैश की वजह से। उसके बाद और कौन सी चीज आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स। इधर क्रेडिट साइड पे आनी है। क्रेडिट सेल्स की आप टोटल अमाउंट लिख देंगे, आपको क्रेडिट सेल्स की अमाउंट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल क्रेडिट सेल्स की अमाउंट 1500 आपकी आ जाएगी, जो कि आप सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, परचेजेस की। परचेजेस की सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही है, और परचेजेस आपको पता है डेबिट होता है, तो आप परचेजेस को डेबिट कर देंगे क्रेडिट परचेजेस के नाम से, डेबिट हो जाएगी। और उसकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड पर, टोटल अमाउंट जो परचेजेस की है, और वो कितनी है जी, 3000 लिख दूंगा मैं। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपने टोटल लिख देना है, दैट वुड बी एनफ। जितना रिटर्न इनवर्ट के अंदर भी आप जो टोटल रिटर्न्स फॉर द मंथ है वो आप लिख देंगे, जो कि आपकी 200 की जो है वो बन रही है। रिटर्न इनवर्ट आपका, आपको पता है डेबिट होता है, ये डेबिट साइड पे आप लिख देंगे 200, और ये टोटल रिटर्न्स के नाम से आप इसको लिख सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और वो रिटर्न आउटवर्ड टोटल रिटर्न्स के नाम से आपकी आ जाएंगी, क्योंकि वो क्रेडिट होता है कितने से जी, सिर्फ 500 की रिटर्न्स हैं, जो कि ए को हमने बेसिकली की थी, वो हम लिख देंगे। फिर मशीनरी की एंट्री है। मशीनरी बेटा डेबिट हो रहा था, हमें पता है कि मशीनरी डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, एफ की वजह से। तो मशीनरी की डेबिट साइड पे हम लिख देंगे, नाम आ जाएगा एफ का, अमाउंट उसकी आ जाएगी 2000।
मैं इसके बैलेंस नहीं कर रहा, मैं इनको, क्योंकि बैलेंस की जरूरत नहीं है मुझे करने की। इस तरह बैड डेट्स की अमाउंट भी डेबिट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि डी क्रेडिट हो रहा है बैड डेट्स की वजह से, लेकिन बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं डी की वजह से, कितने से, 200 से। वो आ जाएगा सैलरीज डेबिट हो रही हैं 100 से, ये बेसिकली कैश है। रेंट जो है वो भी डेबिट हो रहा है 100 से, और वो हो रहा है बैंक की वजह से। ये मैंने अपने अकाउंट जो है प्रिपेयर कर लिए सारे के सारे, ये अकाउंट्स द जनरल लेजर। ये मैंने सेल लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर आपको बना के पूरा एक क्वेश्चन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का सॉल्व किया है, जिसमें हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जो 6 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज है, सेल जर्नल, परचेज जर्नल रिटर्न, इनवर्ड जर्नल रिटर्न, आउटवर्ड जर्नल, कैश बुक और जनरल जर्नल बनाना सिखाया मैंने आपको। यहाँ पर जनरल जर्नल में 2 एंट्रीज आपकी आएंगी, क्योंकि इसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है और गुड्स भी नहीं है। उसके बाद मैंने बनाए लेजर्स, और लेजर्स हमने बनाए हैं सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर, जिसमें ऑल अदर टी अकाउंट्स आते हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, और पर्सनल अकाउंट्स उसके अंदर नहीं आते। क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था, ताकि क्वेश्चन आपको समझ आ जाए कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल जो है वो करेंगे। जी, कोई मसला है तो मुझे बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर। क्लियर है? जी सर। अब ये मैंने आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी करवा दी है। अब घर में आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक बुक में से पढ़ लेना है, तो मैं चाहूंगा कि आप बुक में से पढ़ लें, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू आर फॉर रिवीजन क्लास, सो आई विल गो लिटिल एट ए स्पीडी ट्रैक, ताकि हम जल्द जल्द जो है अपना कोर्स जो है वो कवर कर सकें। तो ये हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी हमने 15 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिए। अब आपने 24th चैप्टर है जो कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, वो आपने घर में पढ़ लेना है। कल भी मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी, और फिर हम बैड डेट्स को स्टार्ट जो है वो कर देंगे। ठीक है जी सर? जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला फिर वेडनेसडे को मुलाकात होती है हमारी। अल्लाह हाफिज।